let me quickly again go through the slides. This the first slide which I was showing. This is the I mean the unethical work, you can say, or the publications which are thought to be fraud or suspected fraud, right, by different countries. It's not like that only in India we have the problem, but even in other countries, like even modern countries, you can say big countries like USA, Germany, Japan, China, all have the same problems. Rather, the problem is more in other countries. So it's not like that they are not involved in this type of practice. So the plagiarism or say fraud or suspected fraud work or duplicate publications, these are also seen in other countries. So it's a big problem. Gradually it is becoming more and more. So but which is not right, right? Let's think from our side that we should not get involved in that. So before that I was talking that how do you define the publication. So when I say publications, generally we'll be considering the original publications. Original publications means the new work, irrespective of where you have done, what type of work you have done, but it should be entirely new or innovative, and not in regional level, but it should be in the global level. Then it is of some importance. So, and finally, what we do when you publish in the printed form or in the audiovisual form, then it is known as a sort of publication. So I have just defined ordinarily the definition of publication is something which is in the written and printed form, either in the form of book or in the form of newspaper or magazine or article or poster or the video or any document, informations, etc. You ultimately make your contributions, right, in the form of all these either article or whatever may be, to the common people. So it is ultimate aim is to make your work or your findings available to the common people, preferably in the printed media or in the audiovisual media. That is the thing. Okay. Now, if we think why it is necessary, generally through publication, we generally either theoretical or practical contributions, that means your dissertation work or your scientific research work, experimental work, we generally disseminate to other people, particularly those who are working in our field. They will take in कि हाँ मेरा फील्ड थायराइड है, कि मेरा फील्ड ये है, कि मेरा फील्ड कॉमर्स है, तो कॉमर्स में जो पब्लिकेशन हो रहा है मैं इंटरेस्ट लूंगा, तो पर्टिकुलर उन्हीं लोग ज्यादा उससे बेनिफिट होते हैं, राइट? Obviously this makes the scientific researchers and the practitioners with similar interest aware of knowledge in their field, or it helps to enhance the knowledge and its application. So ultimately either basic अगर हम लोग देखते हैं तो ये एनहेंस करता है आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज को थ्रू पब्लिकेशन जब देखते हैं, या हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं एक्सट्रीमली न्यू टू द particular in a particular area which is known as innovative research or original research. दोनों चीज करते हैं. कभी कभी यही ओरिजिनल रिसर्च जो होता है अप्लाइड एस्पेक्ट हो जाता है. बेसिक में अगर हम लोग बात करेंगे, बेसिक इज नॉट गोइंग टू बी सॉर्ट ऑफ एनी यूज इमीडिएट, बट अप्लाइड जो है it should be of some use as early as possible or immediately. That is a purely applied aspect. For example, आप ड्रग डेवलप कर रहे हैं, अप्लाइड एस्पेक्ट. कुछ पोल्यूशन कंट्रोल करना चाहते हैं, कुछ मेथड बना लिए, अप्लाइड एस्पेक्ट, क्योंकि इमीडिएट यूज में आ जाता है. लेकिन जैसे हम लोग काम करते हैं कुछ मैथमेटिक्स में, अलजेब्रा में, या डिफरेंट अदर फील्ड में, या बेसिक साइंस में, अंडरस्टैंडिंग में, तो वो आपको बेसिक में आता है. इन लॉन्ग रन दैट विल हेल्प or that can be of some applied value, but immediately that only adds to the knowledge, existing knowledge जो है उसमें ऐड करता है. लेकिन जो रिसर्च का आउटपुट है, ऑब्वियसली जब तक हम लोग नहीं देखेंगे नया नया क्या हो रहा है, वो हम लोग को पता नहीं चल पाएगा. So we generally through publications, when you go through the publications, new publications, whether it is pubmed.com और pubmed सर्च करते हैं, या इवन गूगल में भी सर्च करते हैं, और भी बहुत सारे हैं, जहां से भी आप करते हैं, आप उसका थ्रू जब जाएंगे तो नया नया जो हो रहा है फाइंडिंग्स, उसको आप अपना नॉलेज में उसी फील्ड में ऐड कर सकते हैं. क्लियर? सो ये काम होता है. लेकिन मैं जैसे बताया कि कुछ लोग उसको आजकल जल्दीबाजी में या जल्दी एक
अपना पब्लिकेशन लिस्ट में ऐड करने का पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ गड़बड़ कर देते हैं, जल्दी पब्लिश कर देते हैं, कभी कभी फेक डाटा दे देते हैं, कभी कभी ठीक ढंग से लिखते भी नहीं है, प्लेगरिज्म कर देते हैं, किसी का उतार कर दे देते हैं। दैट इज नॉट राइट। सो एथिकल इंपॉर्टेंस आजकल काफी आ गया। लेकिन ये जो है एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं, मैं जैसे पहले बताया, एथिक्स मीन्स यू डू एवरीथिंग मोरली और ऑनेस्टली, देन ओनली वी कैन कंसिडर कि हाँ हम लोग विथ एथिक्स कर रहे हैं। सो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, पब्लिकेशंस का भी अगर देखेंगे तो भी हम लोग को एक एस्पेक्ट जो है मोरल एस्पेक्ट्स और ऑनेस्टी उसमें अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। So I'll be concentrating mostly on the research article publications कि हम लोग उसमें क्या मोरली ये करते, कोई भी रिसर्च, वेदर वन इज फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, वन इज फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड और जनरल आर्ट्स बैकग्राउंड कहिए या आपका मैनेजमेंट कहिए, चाहे साइंस हम लोग का साइंस बैकग्राउंड है, कहीं भी मोरालिटी इज ए मस्ट। सो आई विल ट्राई टू टच कि हर एस्पेक्ट में कैसे मोरालिटी को देखना चाहिए और मोरालिटी को लेके काम करना चाहिए। सो अल्टीमेटली हम लोग क्या करते हैं, जो भी फाइंडिंग हम लोग का होता है, रिसर्च फाइंडिंग जो भी करते हैं, वी सबमिट इन द फॉर्म ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, उसको हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट और आर्टिकल। सो वी सबमिट अल्टीमेटली फॉर पब्लिकेशंस इन द फॉर्म ऑफ एन मैन्युस्क्रिप्ट और आर्टिकल। सो दैट इज द अल्टीमेट स्टेप। बट बिफोर दैट कैसे रिसर्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो तो बात की बात है। लेकिन पब्लिश जहाँ की बात आता है, पब्लिकेशन करना, तो वो फिर आर्टिकल पहले आपको सबमिट करना पड़ेगा या फिर मैन्युस्क्रिप्ट को सबमिट करना पड़ेगा। सो इट स्टार्ट्स विथ योर सबमिशन ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट। लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट जाता कहाँ है पहले, इट गोज टू द एडिटोरियल ऑफिस, राइट। एडिटोरियल ऑफिस को जो जाता है, और एडिटोरियल ऑफिस उसको क्या करता है, पहले रिव्यू करता है, राइट। एडिटोरियल ऑफिस पहले रिव्यू करता है। सो इट इज सबमिटेड टू द एडिटोरियल ऑफिस एंड नॉर्मली वी सबमिट टू द एडिटर इन चीफ, EIC जो मैं लिखा हूँ, एडिटर इन चीफ। सो एडिटर इन चीफ पहले वो खुद देखता है कि the article which has been submitted, this is at par with their format or not, this is an article which has considered the ethics or not, right, और the article जो ग्राफ दिया गया, ये दिया गया, टेबल दिया गया, उसके फॉर्मेट में है कि नहीं। हर चीज जो देखता है पहले तो देखेगा उसकी फील्ड में है कि नहीं, क्योंकि एवरी जर्नल हैज इट्स ओन फील्ड्स ऑफ पब्लिकेशन, सब फील्ड में पब्लिश नहीं करते। सो आपको भी जब सबमिट करेंगे आपको देखना पड़ेगा कि आपकी वर्क आपकी फील्ड में और उस जर्नल की फील्ड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है देन इट्स फाइन, नहीं आ रहा है तो वहां मत सबमिट कीजिए, क्योंकि एडिटोरियल ऑफिस से ही वापस आ जाए। द फर्स्ट थिंग व्हिच इज डन वंस यू सबमिट द जर्नल, editor in chief, it goes through the article. If he finds it is okay, then he will pass on to assistant editors or some other editors, or editor in chief can pass on that one to the assistant editors first before it takes a decision. So whatever feedback he gets from the assistant editors, then he generally recommends कि okay ये हम लोग अभी भेजेंगे रिव्यू के लिए या नहीं, और सबमिशन को कंसिडर करेंगे कि नहीं। Otherwise what he does, outrightly he rejects कि नहीं, this is not falling in our field of consideration, or this is not suitable for our publications, so please submit it to somewhere else। तो पहले वो देखता है। यहाँ भी कभी कभी एडिटर इन चीफ में बता दूं, वो भी अनएथिकल ये फॉलो करता है, क्योंकि वो कभी के बायस्ड होके वापस कर देता है। लेट मी टेल यू वन थिंग कि यहाँ जो अनएथिकल मतलब पॉइंट कंसिडर करते हैं हम लोग, कभी कभी एडिटर इन चीफ, सपोज यू आर फ्रॉम इंडिया, यू आर सेंडिंग टू ए बिग कंट्रीज, एडवांस कंट्रीज, दे मे रिजेक्ट आउटराइटली बिकॉज इट इज अ पेपर फ्रॉम द इंडिया। हाँ कि आजकल नहीं होता, लेकिन इट्स अ पेपर फ्रॉम इंडिया करके छोड़ देते हैं, काम अच्छा नहीं हुआ वापस। लेकिन इंडियन एडिटर्स में भी, इंडियन जर्नल में भी ये होता है। मैं आपको बता दूं, long back when I was simply a lecturer, independently I sent a paper to an Indian journal which is now considered a good journal, outrightly वापस कर दी, क्योंकि I was working in a state university, I was not well known professor, you can say I was simply a lecturer, so they thought कि नहीं ये काम अच्छा नहीं होगा, outrightly it was rejected in the sense कि no, this paper is not suitable because volume is less, this,
And you cannot believe, I sent it to an international journal which is a reputed, which is having at least 2.5, or maybe it has increased impact factor. It got accepted. So the biasness is there both in India as well as in outside. So there sometimes biasness is there, but I feel outsiders are less biased at present, at least. Now they have a little bit consideration for Indian workers also. So either editor-in-chief or assistant editors, right? He will see or she will see to this, and whether it is to be considered or not, or it is to be rejected, he will take the decision immediately, right? If he thinks, okay, this is according to our format, it is falling in our field, then वो क्या करेगा, उसको दूसरा एडिटर्स को भेज देगा, एक असाइन करेगा कोई एडिटर डिपेंडिंग ऑन द फील्ड. सपोज आपकी वर्क है एंडोक्राइनोलॉजी में, किसी का वर्क है इम्यूनोलॉजी में, किसी का वर्क है दूसरी फील्ड में एनाटॉमी में, तो अकॉर्डिंगली कुछ कुछ एडिटर होते हैं एडिटोरियल बोर्ड में. एडिटोरियल बोर्ड में जैसे कि मैं ज्यादातर का थायराइड में, कुछ कुछ जर्नल्स में मैं हूँ थायराइड एडिटोरियल बोर्ड में, आपका एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम में कुछ एडिटोरियल बोर्ड में हूँ, तो मेरे पास उस तरह का पेपर आता है. तो उन लोग भी क्या करते हैं कि कुछ एडिटोरियल बोर्ड में जो मेंबर्स है उसमें से चुनते हैं कि ये मेंबर जो है एडिटर है, ही इज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फील्ड. सो द चीफ एडिटर assigns that manuscript to another editor who is in the who is a member editorial board member, and he takes care then everything. अब वो क्या करेगा, once it is assigned to that editor, वो क्या करेगा, पहले इनिशियल चेक करेगा, राइट? इनिशियल चेक करके बताएगा कि हाँ ये ठीक ठाक है, फॉर्मेट में है कि नहीं है, रेफरेंसेस भी सब ठीक ठाक है, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा काम वोल्यूमिनस हुआ है. वो फिर क्या करेगा, उसको फर्दर प्रोसेस शुरू करेगा. अब जो फर्दर प्रोसेस होता है क्या होता है, नॉर्मली फर्दर प्रोसेस होता है कि अगर पेपर को कंसिडर उन लोग किए फॉर रिव्यूइंग, दे विल सेंड इट टू रिव्यूअर्स. सो पेपर को उन लोग क्या करेंगे, रिव्यूअर्स के पास भेजेंगे. किसी जर्नल्स का 2 रिव्यूअर होते हैं, किसी जर्नल का 3 होते हैं, किसी का 4 होते हैं. बाय एंड लार्ज 2 रिव्यूअर्स तो जरूर रहते हैं, जरूर. So they will send the editor in charge who has been assigned your paper, right? आपकी जो सबमिट की है, he will send that papers to the reviewer. रिव्यूअर के पास भेजेगा. 2 रिव्यूअर कम से कम भेजा जाता है, और 2 रिव्यूअर या किसी किसी का 3-4, साइंस रिपोर्ट जो nature.com है 3-4 के पास भेजते, 3 या 4 के पास. सो कम से कम 3. एंड ये रिव्यूअर क्या करेगा, you will go through the details of the papers, whether title is okay or not, introduction is okay or not, whether it has been written, the citations have been given properly or not, everything he will see. So अगर वो रिव्यूअर खुद वर्क डिजाइन कैसे किए हैं, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ, डिस्कशन ठीक से लिखा, एवरीथिंग ऑल पार्ट्स, आई विल टेल यू लेटर के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट, सब कुछ वो देखेगा. और देखने के बाद रिव्यूअर्स अपना कमेंट, ऐसे कोई पेपर नहीं होता कि जो रिव्यूअर बिना कमेंट का भेजते हैं. हार्डली एनी पेपर इन माय लाइफ से आउट ऑफ 160 पेपर्स roughly, mostly in international journals, I think only once I got directly accepted, once, right? That was probably a camera ready paper. So otherwise not a single paper has been directly accepted without revision. So normally revision के लिए पेपर्स आता ही है, बट अगर रिवीजन के लिए आता है तो आप मान लीजिए कि आपका स्कोप है कि इट विल बी पब्लिश्ड, क्योंकि ज्यादा तरह के रिवाइज पेपर पब्लिश हो जाता है अनलेस अंटिल मेजर रिवीजन इज देयर एंड यू आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई दैट, हो जाता है. सो रिव्यूअर्स देखेंगे, अगर दोनों रिव्यूअर्स की कमेंट्स आ गया, वो जाता है चीफ एडिटर के पास या पहले एडिटर के पास. फिर एडिटर डिसाइड करता है कि हाँ दोनों का पॉजिटिव आया है तो ले लो, अगर एक का पॉजिटिव आया है एक का नेगेटिव आया है तो फिर वो सोचता है कि ये क्या मेजर कमेंट्स दिया है, these comments are really genuine or not. So it is up to the editor whether it can be accepted or not. So sometimes it happens कि both the reviewers recommend and it can be rejected, even if like that, but rarely it happens. But if one has accepted, one has rejected, then chances of getting rejection is more, right? And अगर accept हो जाता है तो it's so far so good. सो रिव्यूअर्स की मेजर रोल होता है
कि इसको पेपर को ठीक ढंग से देखेंगे, अनबायस्ड वे में सोचेंगे। कुछ कुछ रिव्यूअर्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उन लोग अननेसेसरी जैसे बाल की खल उतारते हैं ना कुछ उन लोग कमेंट देंगे। फिर भी डोंट गेट डिसहार्टेड, यू कैन प्रूव देम इफ यू आर रियली गुड इन साइंस, यू कैन प्रूव देम। सो वेरी ऑफन ये होता है कि दोनों रिजेक्ट करते हैं, कुछ कुछ माइनर पॉइंट्स दिखा के उसको भी एक्सेप्ट किया जा सकता है, आप आर्गुमेंट कर सकते हैं। बट जनरली अगर दोनों रिजेक्ट किए फिर एक्सेप्ट होना बहुत ही दिक्कत हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, चाहे आप कन्विंस करें चाहे नहीं करें, क्योंकि कुछ कुछ तो लिख देते हैं कि नाउ इट विल नॉट बी considered for further processing, if you want you can revise and resubmit it, फिर से आप सबमिट कीजिए, फिर से वही प्रोसेस चलेगा, राइट। सो वंस इट इज रिजेक्टेड फिर रीसबमिशन जरूरी है, भले आप करेक्ट करके उसको भेजिए। अल्टीमेटली एडिट रिव्यूअर्स भेज देते हैं एडिटर के पास, एंड द मैन्युस्क्रिप्ट इज रिटर्न टू द एडिटर, एंड एडिटर टेक्स द डिसीजन whether it will be accepted or it will be rejected or it will be sent for revision again, right? So it is up to the editor. लेकिन अगर एक्सेप्ट हो जाता है पेपर, सपोज आप रिवाइज की बात भी भेज दिए और फिर उसको रिवीजन वाला जो भी पॉइंट्स दिया था, and they agree with all these points which they had raised, and they feel now the present condition or present status of the revised manuscript is good enough for publications, so it is generally accepted. Now if the paper is accepted, then you will get an acceptance letter, you will get an email. Nowadays mostly we generally submit through online mode, so you get an acceptance letter. Your paper has been, we are happy to announce that your paper entitled this has been accepted for publications in this journal. Okay, you will be getting further communications or further informations in due course of time. So जब पेपर एक्सेप्ट हो गया, आपको लेटर मिल गया, नाउ यू कैन राइट कि this paper against this paper in your biodata in bracket accepted, so it is a credit. जब तक एक्सेप्ट नहीं हुआ आपका कोई क्रेडिट नहीं। अब एक्सेप्ट होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि आपको आइदर थोड़ा बहुत रिवीजन के लिए बोलेंगे, या फिर सीधा उन लोग देखेंगे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सीधा प्रेस में भेज देंगे। अब प्रेस में जब जाता है, प्रेस वाले उसको टाइप सेटिंग करके ठीक ठाक करके एक ऑलमोस्ट प्रिंटेड फॉर्म में निकाल देते हैं, जो कि अबाउट टू बी पब्लिश्ड है। आपको अलग ज्यादा नहीं दिखेगा प्रूफ कॉपी, थोड़ा बहुत उनका जो वॉल्यूम नंबर, जर्नल की नाम और कितना इश्यू नंबर, पेज नंबर, ये सब नहीं रहेगा, बाकी सब आपका प्रूफ कॉपी में रहेगा। सो आफ्टर ए मंथ और सो you get the proof copy, and they will ask you to correct the proof copy if any mistake is still there. So obviously some mistakes are left, generally they are ignored, right? And now you have a chance to go through your manuscript again, and those mistakes which are there you have to correct them. But please remember that at this stage what you can do is you can have only minor corrections, not major corrections. If major corrections are there, then obviously it will be charged. So very often what happens, major, suppose you have missed on enter one paragraph, so you must be thinking अरे एक पैराग्राफ तो छूट गया, मैं इसको घुसा दूं। नहीं घुसा सकते, आप घुसाएंगे तो आपको चार्ज लगेगा, एंड इंटरनेशनल चार्ज जो डॉलर में या पाउंड में या यूरो में होता है ना, बहुत ज्यादा होता है। एक एक पेज के लिए कम से कम 5-6 हजार रुपये आपको देना पड़ेगा। सो बेटर केयरफुली आप जब रिवाइज करके सबमिट करेंगे, यू हैव टू वेरी केयरफुल टू रीसबमिट द पेपर, सो दैट योर करेक्शन विल बी मिनिमम, मिनिमम करेक्शन डजंट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। सो आपको जब प्रूफ कॉपी आता है विद इन 48 आवर्स या मैक्सिमम 72 आवर्स में आपको वापस करना पड़ेगा विद ऑल करेक्शंस। वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कैसा करेक्ट करना है, क्या करना, और आजकल अपलोड होता है करेक्टेड प्रूफ कॉपी को, आप फिर सबमिट कर दीजिए। And then once it is submitted, proof copy is submitted or the corrected proof copy is submitted, then your publication is ensured. आपका publications आ जाएगा within few days, और फिर उसमें पेज नंबर सब कुछ रहेगा, एवरीथिंग पूरा फुल पेपर, एंड आपको यू विल गेट एटलीस्ट 1 PDF, और कोई कोई रिप्रिंट्स भी भेजते हैं, 3 रिप्रिंट्स, और इफ यू प्लेस ऑर्डर तो आपको ये करना। तो ये जो है आपका प्रोसेस, ये एवरी प्रोसेस राइट फ्रॉम सबमिशन ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट टू गेट इट पब्लिश्ड, इन एवरी स्टेप ethical commitment or ethical conditions is come.
So you have to be very, very honest in every point. That you as well as the editorial board members or the reviewers, they have to be honest. That is why sometimes good work is not published easily, and sometimes a bad work is published easily. This is the thing. It all depends on the people or the stakeholders which are concerned with publication process or this process. Now let's go to the next slide. So what I was telling, how important is ethics in research? क्योंकि यही एक आजकल, पहले कोई बात नहीं करता था एथिक्स एथिक्स एथिक्स, कोई नहीं बात करता, कहता था हाँ पब्लिश हो गया ठीक, बिकॉज पीपल यू आर नॉट दैट डिजॉनेस्ट probably. Now gradually with a hoard or with a rush for getting published papers in their biodata or in CV, people are publishing XYZ in XYZ journal, in any journal. Some journals are known to predatory journals, or some journals are not up to the mark anywhere, which is wrong. So ethics is very important from publication point of view. And if you follow the ethics, then it becomes the standard publications or quality publications. So let's see how we can follow the ethics. अब बात आता है, what is ethics? Basically, ethics, as I told earlier, that it is a moral principle. It is work based on moral principle or moral principle that governs a person's behavior or his or her activity. इनफैक्ट हम लोग एथिक्स जो बात करें, ये केवल पेपर पब्लिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि बुक पब्लिकेशन या मैगजीन पब्लिकेशन पॉइंट, एथिक्स हर जगह में लागू होता है, हर जगह. आप अगर कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटर, मैं आज ही ट्वीट किया था, एडमिनिस्ट्रेटर्स, हम लोग का ज्यादा बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स है, उन लोग एथिक्स फॉलो नहीं करते, इसलिए प्रॉब्लम होता है. आपको मैं अगर पूछूं, यू नेम वन एडमिनिस्ट्रेटर हु इज हाईली रिनाउंड एंड वेल नोन एडमिनिस्ट्रेटर and highly ethically or morally he is very sound, मेरे ख्याल से आप लोग अगर कहेंगे भी तो एक का नाम ले सकते हैं, इतना सारे से. सिमिलरली अगर आप कहेंगे एथिकली कितने लोग अच्छे हैं कि क्या है, हर ये में, खाली में एडमिनिस्ट्रेट काम करने वाले में भी, जैसे क्लर्क्स लोग होते हैं, ये होते हैं. तो आजकल एथिक्स का महत्व बहुत बढ़ गया है, इसलिए एथिक्स को लोग फॉलो नहीं कर. सो इट इज बेसिकली that governs the person's behavior, moral principles. It should be done on the moral basis, morality, जो कि पहले हम लोग ordinary कहते हैं morality. So morality in all activities or the behavior. And in fact, it's a new branch now. It's a branch of knowledge that deals with moral principles. So basically, deals with honesty or with moral principle. Right? अब जो बात आता है कि ये ethics जो है, अगर कोई नहीं फॉलो करता है, पर्टिकुलरली इन आवर फील्ड, दैट मींस इन एकेडमिक्स, उसको क्या कहेंगे? इट्स अ मिसकंडक्ट. जिसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, हम लोग कहते हैं कि उसका कंडक्ट अच्छा नहीं है, राइट? हम लोग कंडक्ट सर्टिफिकेट देते हैं, भले झूठ मूठ में भी लिख देते हैं कि ही वाज वेरी गुड फ्रॉम कंडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, इट वाज सेटिस्फैक्टरी, भले अनसेटिस्फैक्टरी भी हो, लेकिन ये करते हैं. इंडियंस आर, वी द इंडियंस आर वेरी सिंपैथेटिक आल्सो टू स्टूडेंट्स एंड अदर्स, कर देते हैं, लेकिन और सही नहीं है, कुछ हद तक सही नहीं है. सो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करेंगे, बेसिकली if you are not following ethics, then it will be considered as an academic misconduct. So you will find even some publications are there, academic misconduct like. Now academic misconduct होता क्या है? आप रियल चीज को छुपा रहे हैं and you fabricate something new. So what you are doing is you are presenting the report or you are writing the report in fabricated form, कुछ बना के कर रहे हैं. It's not the original and it's not the true one or it is not the real one. So you are fabricating or you are falsifying it or it's a falsified report. False report there. True report को आप नहीं कर, ठीक है. जो पकड़ में अगर आ गया तो रिजेक्ट हो जाता है, नहीं पकड़ में आया तो पब्लिश हो जाता है. जैसे होता है ना, दुनिया में बहुत लोग गलत काम करते हैं, जो अगर पकड़ में आ जाता है वो तो कल्प्रिट बन गया, या कुछ उनको कहते हैं कि ये तो बहुत गंदा आदमी है, बदमाश है, दिस एंड दैट. जो नहीं बना, नहीं पकड़ में आया तो सही है. सो एग्जैक्टली लाइक दैट the academic misconduct involves fabrication. So fabrication
of the real things to an unreal, or an, you can say, man-made things in general, or falsified report आप भेज रहे हैं। एंड यहाँ जब बात करते हैं हम लोग ज्यादातर का बात इसी का करते हैं, दैट इज प्लेजियरिज्म। और प्लेजियरिज्म जो है, प्लेजरिज्म आपका ये आजकल एक कॉमन ये पता आजकल, इसीलिए देखिए इसी का मध्य रखते हुए यूजीसी भी कह दिया कि आपका थेसिस जरूर प्लेजरिज्म टेस्ट होके आना चाहिए। यू हैव टू पुट अ सर्टिफिकेट, यू हैव टू अटैच अ सर्टिफिकेट इन योर थेसिस। पीएचडी थेसिस का ही है, इवन समटाइम्स इन एमएससी डिजर्टेशन आल्सो, पीजी डिजर्टेशन में भी प्लेजरिज्म का सर्टिफिकेट लगाए। और हम लोग क्या कहते हैं, प्लेजरिज्म को जो रिटिन फॉर्म में है एग्जैक्टली कॉपी नहीं होना चाहिए, किसी का काम को उठा के आपको डालना नहीं, दैट इज नॉट सो दिस। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग केवल एथिकल जानते हैं कि एथिकली इट इज नॉट राइट, लेकिन और भी बहुत सारे पॉइंट्स है जो कि एथिकली इट इज नॉट राइट। सो व्हाट इज प्लेजरिज्म? इट इज समथिंग और टेकिंग समवन एल्स वर्क, दूसरे का काम और आइडियाज, एंड यू जनरली यूज देम ऑफ एज वंस ओन, अपना ओन काम सोच कर आप उसको यूज करते हैं। दूसरे का काम को चुरा लिए और उसको अपना काम सोच के उसको डाल देते हैं, चाहे थेसिस में हो, चाहे पेपर में हो, चाहे कुछ भी। और ये माना जाता है कि रिजल्ट जो है, रिसर्च का जो राइटिंग, पेपर राइटिंग करते हैं, बहुत सारे लोग उसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। हाँ कि आजकल पकड़ में आ जाते हैं अगर थोड़ा प्लेजियरिज्म चेक होता है, राइट। तो ये बात जो है कि आप कोई भी चीज कॉपी करके अपने काम में दूसरे का काम को नहीं डालेंगे, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके। एंड जैसे सीआरसी प्रेस या बाकी सब क्लियरली लिख देते हैं, एक छोटा पैराग्राफ अगर आप कॉपी कर रहे हैं उसको प्लेजियरिज्म माना जाएगा, ठीक है। अगर आप ये दे रहे हैं, उनका रेफरेंस दे रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा एक सेंटेंस आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कह सकते हैं, फॉलोइंग कैडमियम एडमिनिस्ट्रेशन देयर वाज एन इंक्रीज इन लिपिड पेरोक्सीडेशन इन लिवर। If anybody has written this sentence, you can also write that sentence with giving your reference of that particular person who has published. लेकिन इससे ज्यादा, एक सेंटेंस से ज्यादा अगर आप कर रहे हैं, एक पैराग्राफ कर रहे हैं, then it will be considered as plagiarism even if you cite your references. So पूरा पैराग्राफ नहीं कर सकते। ओके। सो ये आजकल इसको ज्यादा ये माना जाता है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसको छोड़ के भी बहुत सारे हैं। कभी कभी तो इवन रिजल्ट्स को पब्लिश कर देते हैं। लेट मी टेल यू, इवन समटाइम्स द रिपोर्टिंग द रिसर्च रिजल्ट्स, सम अदर्स रिजल्ट्स यू कैन report, that will be also a sort of plagiarism, but people used to do। और बाहर वाले भी करते हैं। मैं आपको बता दूं, मेरे एक काम का एक टेबल को पूरा उठा के एक जापानीज, ये में जापानीज साइंटिस्ट पब्लिश कर दिया था, एंड आई डिडंट नो दैट थिंग, बट वन हु read that paper, he sent a mail to me, email, hey, Dr. Kaur, this was published earlier 2 years back, and I don't know how this table has appeared again in these publications, which is of somebody else. Then I contacted that person. Finally I wrote to that person. Unfortunately, that person was an editor of that journal, and I was really very much concerned about this, and I started asking. I had a talk also with him, and he said, Dr. Kaur, I'm very sorry, my research scholar has done this thing, I was not aware of this, however I'm going to retract my paper. No, that's fine, and I came to know that this journal is going to be out of market, or it will be discontinued in future. And in fact that journal was discontinued, and many people are now retracting their papers because once they are known that they had used some plagiarism business. So this is a serious offense, serious offense. Okay. So all these things will quickly go through. Now, ये तो हो गया आपका जनरली हम लोग जो सोचते हैं कि आइदर फॉल्स डाटा या फॉल्सिफाइड पब्लिकेशन हम लोग कर रहे हैं, या फैब्रिकेटेड या प्लेगियरिज्म थ्रू से कर रहे हैं, विच इज रॉन्ग। अब बात आता है और क्या क्या चीज को हम लोग अनएथिकल मानते हैं। सपोज you are going to publish a paper in a journal which has already been published somewhere else. जरूरी नहीं है कि रिव्यूअर्स उसको इजीली पकड़ पाए,
ये जरूरी नहीं है कि वो काम आपका इंडेक्सिंग में आ गया है, पबमेड में कहिए या इंडेक्स जर्नल इंडेक्स में आ गया है, कोई जरूरी नहीं है। उसका मतलब नहीं है कि आप एक बार किसी भी ऑर्डिनरी जर्नल में भी अगर पब्लिश किए हैं उसको फिर से आप दोबारा दूसरी जर्नल में पब्लिश करने का कोशिश करें। एंड सम रिसर्चर्स डू दैट आल्सो। दैट इज व्हाई आप देखे होंगे जब हम लोग पेपर सबमिट करते हैं एक सेंटेंस लिखा रहता है, एक सॉर्ट ऑफ अंडरटेकिंग देना पड़ता है कवरिंग लेटर में कि दिस वर्क has not been published in any other journals or it has not been communicated either to any other journal in this form। हम लोग को लिख के देना पड़ता है। You will have to also do the same thing। So जो कहीं भी ये communicated भी नहीं हुआ है या published भी नहीं हुआ है, then only you should submit that paper to some journal। और शामिल कभी कभी क्या करते हैं कुछ लोग, कहते हैं कि पता नहीं ये जर्नल लेगा कि नहीं लेगा, मैं वेट करूंगा 6 महीना या 4 महीना, फिर अगर रिजेक्ट कर दिया तो मेरा टाइम बर्बाद हो गया, मुझे तो जल्दी 1 साल में एक पेपर चाहिए, 2 पेपर, मेरा प्रमोशन ड्यू है। तो उन लोग क्या करते हैं उसी पेपर को साइमल्टेनियसली 2 जगह में 3 जगह में डाल देते हैं, 3 जर्नल में डाल देते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। unless until your paper submitted once to a journal, either it should be rejected or you should withdraw it। सपोज आपको लग रहा है लेट, कभी कभी हम लोग को करना पड़ता है, लेट में आपका कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, 1 साल हो गया या 6 महीना हो गया रेस्पॉन्स, यू आर इम्पेशेंट। इट्स नॉट लाइक दैट ignoring that communicating to that journal you straightway submit the paper to another journal, no। Either you have to ask them ki please process it as early as possible, otherwise I will withdraw my paper and will submit to somewhere else, or what you will do is that straight away you write कि I am going to withdraw my paper and I will submit to somewhere else। और the journal डिसीजन जो लेंगे उन लोग जल्दी लेके उसको आइदर रिजेक्ट करके वापस करेंगे या फिर रिवीजन करके देंगे। तो जब तक नहीं होता आप सबमिट नहीं कर पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो, राइट। इवन आप पीजी स्टूडेंट जैसे आप लोग हैं, हम लोग सोचते हैं कि पीजी स्टूडेंट्स हाँ एक डिजर्टेशन वर्क करना है, कुछ बना के दे देंगे लिख लख के, इनकी डाटा डाल दी, दोनों एक ही फील्ड में कर रहे हैं। कभी कभी सुपरवाइजर कहता है कि जो मेंटर है कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, तुम एक काम करो वही डाटा रख दो, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चेंज कर देता हूँ डाल दो। कभी कभी इग्नोर भी लोग कर देते हैं जो रिव्यू देखता है, लेकिन इसे करना नहीं चाहिए। either if you are taking students and you are a mentor for some students, so give time or don't become mentor for them, क्योंकि उनका भी फ्यूचर फिर गड़बड़ हो जाता है, मार्क्स तो उन्हीं को ही कम मिलेगा, पकड़ में आ गया तो फिर गड़बड़ होगा, ये तो दिक्कत होता है। जैसे आज के पेपर में आया था, आजकल ऑनलाइन ऑनलाइन ये में प्रॉब्लम क्या होता है, ऑनलाइन में ओपन बुक एग्जामिनेशन में क्या कर रहे हैं कुछ बच्चे लोग का, आज के पेपर में जैसा आया था एग्जैक्ट किताब से फोटोकॉपी कर लिए, उसी को स्कैन करके उसी को भेज दिए, और सिमिलर पूरा आंसर 10-15 स्टूडेंट्स का है। सिमिलरली कोई एक स्टूडेंट लिख लिया उसका ही आंसर अपना नाम डाल के, क्योंकि 1 घंटा टाइम दिया जाता है, 1 घंटा या आधा घंटा कम से कम देने के लिए, तो आधा घंटा में वो सब करके उसी को भेज देते हैं, हैंड राइटिंग इज सेम। ये कभी कभी दीज आर ऑल अनएथिकल। सो ये होना नहीं चाहिए। सो दोनों जगह में आप कभी भी सबमिट नहीं करेंगे एट ए टाइम टू वन जर्नल ओनली। फिर दिस एथिकल वर्क दैट डिपेंड्स ऑन द ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट, कौन किसको ट्रस्ट कर रहा है, नहीं तो वहां भी अगर डिस्ट्रस्ट हो गया तो फिर अनएथिकल हो जाएगा। सो एग्जांपल, ऑथर्स मस्ट ट्रस्ट द एडिटर। व्हाई आई एम टेलिंग ऑथर्स मस्ट ट्रस्ट द एडिटर, क्योंकि आप पहले तो भेज रहे हैं पेपर एडिटर के पास, आइदर चीफ एडिटर और एडिटर के पास, मेन एडिटर के पास ना। ये एडिटर का ड्यूटी है कि उसको ठीक ढंग से देखे कि पेपर इज सुइटेबल फॉर हिज जर्नल और नो। कभी कभी एडिटर भी क्या करता है बायस्ड में कहता है कि नहीं ये सुइटेबल नहीं है, हटा दो, या बहुत सारे हम लोग का भीड़ है तो ये अच्छा काम ही है तो उसको वापस करते नहीं नहीं, दिस वर्क इज नॉट of our concern or this is not falling in our field, so I am sorry that we cannot consider this paper for further processing। ऐसा आता है, मेरे भी आया, मैं आपको बता दूं। तो ये एडिटर को भी एथिक्स फॉलो करना जरूरी है कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, there should be some rules and regulations।
अगर आपका पास जगह नहीं है और आप कंसिडर ज्यादा नहीं करें तो आप बंद कर दीजिए कंसिडरिंग एनी पेपर इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट हैज कम फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम जापान और चाइना और एनीवेयर एल्स। बंद कर दीजिए, लेना ही बंद कर दीजिए। लेकिन बायस्ड में कुछ को लेना है कुछ को रिजेक्ट करना है, ये तो मत कीजिए। सो वहां भी बायस्ड होने का चांसेस बाय द एडिटर होता है। बट वी हैव टू ट्रस्ट ऑथर्स, ट्रस्ट द एडिटर, वी ट्रस्ट द जनरली द एडिटर्स, और एडिटर भी हम लोग पर ट्रस्ट करता है। सो एडिटर ऑल्सो ट्रस्ट ऑन आस कि हाँ ये जो काम दिया है, चाहे वो पाकिस्तान से आए, चाहे बांग्लादेश से आए, चाहे इंडिया से आए, चाहे और कहीं से आए, काम शायद ठीक ठाक किए हैं और ऑनेस्टली किए हैं, वो भी तो ट्रस्ट करता है, तब जाके वो एक्सेप्ट करता है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। सो ट्रस्ट पर ही डिपेंड करता है दोनों को, एक दूसरे को। फिर क्या होता है, एडिटर देता है पेपर किसके पास, रिव्यूअर के पास भेजेगा। पहले वो दूसरा एडिटर को असाइन करेगा, वो भेजेगा रिव्यूअर्स के पास। अब ये जो रिव्यूअर सिलेक्ट करना, ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड जॉब है। कभी कभी उन लोग उस फील्ड का नहीं है फिर भी उसको रिव्यूअर बना देते हैं। सपोज मैं काम किया हूँ थायराइड में, थायराइड फील्ड का पेपर भेजा हूँ, उनके पास रिव्यूअर ही नहीं है, जो एडिटोरियल बोर्ड में जो है कोई थायराइड वाले है ही नहीं, और रिव्यूअर भी उनका लिस्ट में जो डाटाबेस में कोई रिव्यूअर थायराइड का है ही नहीं। तो वो क्या करते हैं, किसी के पास भेज देते हैं जिसको कि समझ में भी नहीं आता है। तो ये तो गलत है। कुछ कुछ होते हैं जो कि थोड़ा इंटेलिजेंटली डील करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हम लोग फिर कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर को भेजते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर कुछ नाम भेजे रिव्यूअर का इन हिज ओन फील्ड। तो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर के पास आता है हम लोग के पास कि प्लीज सेंड 5 नेम्स ऑफ द पोटेंशियल रिव्यूअर्स इन दिस फील्ड इन व्हिच यू हैव सबमिटेड योर पेपर। अब हम लोग भी क्या करते हैं, देखते हैं कि इंडियंस का अनफॉर्चुनेटली कुछ कुछ में बहुत ज्यादा इंडियंस वर्कर होते नहीं है, तो फिर बाहर वाले को देना पड़ता है। और हम लोग को लगता नहीं कि कौन एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, उसमें से गलती से कुछ गलत भी चले जाता है। और कुछ कुछ हम लोग देखते हैं कि इनको दे तो अच्छा है, इनको दे तो बेटर रहेगा, एक्सेप्ट होने का चांसेस है। सो यहाँ भी एक बायसनेस आता है। जैसे होता है ना, आपका देखिए, हम लोग जो थेसिस सबमिट कराते हैं, अपनी अंडर की थेसिस सबमिट कराते हैं, इंडियन कंडीशन में मेरे ख्याल से जितने भी यूनिवर्सिटीज है सब में एक ही प्रोसेस चलता है। क्या प्रोसेस है कि once the thesis is submitted, supervisor has to give the names of 6 potential examiners। यही है ना। तो 6 एग्जामिनर्स मेरे ख्याल से सब यूनिवर्सिटी बुंदेलखंड में भी वही होगा, 6 एग्जामिनर, 6 या 8 10 जो भी हो, 6 या 8 10 आपका एग्जामिनर सुपरवाइजर नाम देगा। अब सुपरवाइजर क्या करता है, थोड़ी एग्जैक्टली इस फील्ड का देता है, वो तो प्रोफेसर है, रीडर है, चलो दे दो, अपना जान पहचान का है, किसी का भी दे दो। वहां भी तो अनएथिकल हो गया ना। कायदे से क्या होना चाहिए कि जिस फील्ड में आपका लड़का या आपका जो स्टूडेंट काम किया है, उसी फील्ड का एक एग्जामिनर को आपको चुनना चाहिए, हु इज एट द रैंक ऑफ रीडर और प्रोफेसर। हाँ, तो मैं तो मानता हूँ कि चाहे रीडर हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे लेक्चरर हो, बस उस फील्ड में होना चाहिए, देन ओनली प्रॉपर इवेल्युएशन विल बी देयर। लेकिन वो होता नहीं है, कोई भी नाम दे दिया जाता है, जान पहचान वाले का तो हो तो और भी अच्छा है। अब हो जाता है, उसमें से जो एग्जामिनेशन बोर्ड में रहते हैं उन लोग क्या करते हैं, एग्जामिनेशन बोर्ड वाले मेंबर्स जो होते हैं वही उन्हीं सब में होते हैं, डीन रहता है, ये रहते हैं, प्रोफेसर रहते हैं। उन लोग सोचते हैं अरे मेरे तो, मुझे तो नाम याद नहीं, कौन प्लांट टिश्यू कल्चर में काम करता है, कौन किस में काम करता है, चलो जो दिया है उसी से स्टार्ट, एक को ऊपर वाले को रिजेक्ट कर दो, सेकंड वाले को दे दो नाम, थर्ड वाले को रिजेक्ट करो, फोर्थ को दे दो, ऐसे करके। एंड देन दिस पैनल गोज टू द अप्रूवल, goes for the approval of the vice chancellor, and vice chancellor obviously he or she doesn't know who is particularly in that particular field, working on that particular field। वो नाम में से 3 या 4 नाम जो जाता है, 4 में से 2 को टिक मार देता है, कोई भी। सो अल्टीमेटली द एग्जामिनेशन ऑफ और इवैल्यूएशन ऑफ द थेसिस मेरे ख्याल से बाय एंड लार्ज इन इंडियन कंडीशन बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। गनीमत है कि आजकल यूजीसी कर दे कि एक पेपर कम से कम होना चाहिए उस फील्ड में, चलो, और प्रीपेज भी होना चाहिए। अदरवाइज पहले तो कुछ भी लिख दो डाल दो, थीसिस इज एक्सेप्टेड, वाइवा हो गया, अवार्ड इज गिवन। एंड हालत क्या है, जो कि दे आर नॉट फ्रॉम द सेम फील्ड। सेकेंडली, ये जो रिव्यूअर्स, दे मस्ट, दे ऑल्सो ट्रस्ट ऑन द वर्क ऑफ द ऑथर्स। उन लोग भी डिटेल्स पे नहीं जाते, कहते हाँ काम करके जब भेजा है, काम करके जब भेजा है तो जरूर
ऑनेस्टली क्या होगा, चलो मान लेते हैं, हम लोग रिव्यूअर्स के पास भेज देते हैं, तो वो भी ट्रस्ट करता है ऑथर्स की वर्क पर और भेज देता है। अब ऑथर्स क्या करते हैं, कभी कभी दे ऑल्सो आई मीन ट्रस्ट ऑन द को ऑथर्स। जो काम को ऑथर्स के थ्रू से भी होता है, ऑथर्स को ऑथर्स मिल के करते हैं, क्योंकि सपोज को ऑथर्स मींस इट इज प्रिज्यूम्ड कि ही हैज आल्सो वर्क टू सम एक्सटेंट, राइट। जो भी को ऑथर्स, हाँ कि इंडिया में काफी सारे ऑथरशिप गड़बड़ भी हो जाता है, वो भी एक अनएथिकल, लेकिन माना जाता है कि को ऑथर्स कुछ तो ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है। सो ऑथर्स, जो मेन ऑथर, वो भी को ऑथर्स पर ट्रस्ट करता है कि हाँ कुछ तो काम किया होगा, लेकिन को ऑथर क्या करके दिया है, क्या काम कर किया है, वो भी एथिकली सही है कि नहीं है, और नो। नाम तो उनका, उनको तो को ऑथर्स जनरली जो होते हैं वो नाम से मतलब रहता है, उनका नाम ऑथरशिप में आ जाए, दैट्स ऑल। सो ये जो है ऑथर्स एक्चुअल कंट्रीब्यूशन हुआ है कि नहीं हुआ है ईच ऑथर का, वो कहता है कि हुआ है नहीं हुआ है, जो भी हो चलो मान लेते हैं हुआ है और पब्लिश। सो बात ये होता है कि वी जनरली ट्रस्ट ऑन ईच अदर, राइट, एंड दिस ब्लाइंड ट्रस्ट इज ऑल्सो a sort of unethical ये matter, blind trust on this, but we are helpless sometimes, we generally follow। हम लोग अपनी तरफ से जो करना है कि उसको करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको, जैसे ऑथर्स और को ऑथर्स, ऑथर्स जो मेन ऑथर है, ही मस्ट और सी मस्ट रियली सी द एक्चुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द को ऑथर्स और अकॉर्डिंगली ऑथरशिप देना चाहिए, अदरवाइज नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, लेकिन हम लोग देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा कि किस तरह का हम लोग ये गड़बड़ कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो है, हम लोग सबकी एक दूसरे पर रिलाई करते हैं, लेकिन ये ऑथरशिप का जो देते भी है ना, ये कभी कभी गड़बड़ देते हैं। सुपरवाइजर या मेंटर कभी कभी सोचते हैं, बहुत जगह का, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, ही और सी थिंक्स कि आई शुड बी द फर्स्ट ऑथर, वो कहता है कि मैं फर्स्ट ऑथर होना चाहिए। हाँ कि मैं कभी नहीं सोचता हूँ उस तरह, लेकिन कुछ ज्यादातर के लोग सोचते हैं कि मेरा फर्स्ट ऑथर, क्योंकि फर्स्ट ऑथर का वेटेज ज्यादा है। सेकंड ऑथर, थर्ड ऑथर, फोर्थ ऑथर, ये भी कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, दे देते, भले हम लोग लिख देते हैं देयर इज नो कॉन्फ्लिक्शन बिटवीन द ऑथर्स और बिटवीन द ऑथर्स, लेकिन ये होता है। सो ऑथरशिप लेके कभी कभी होता है क्या, जो मेन सुपरवाइजर रहता है वो अपना सुपरवाइजर के भी नाम दे देता है, अपनी बॉस का भी नाम दे देता है, या और किसी का पॉलिटिशियन के भी नाम दे सकता है, कहता है कि नहीं इनका नाम दे देते हैं, मे बी इन फ्यूचर ही विल हेल्प अस, लेकिन प्रैक्टिकली ही हैज नॉट contributed anything to that particular paper। So this obligatory authorship, और यू कैन से गिफ्ट ऑथरशिप, सो कॉल्ड गिफ्ट ऑथरशिप्स जो होता है ना, ये कभी कभी बड़ा दिक्कत होता है, देना नहीं चाहिए। मैं पहले भी शायद किसी ये में बताता हूँ, बताया हूँ कि कभी कभी पेपर में 2 पेज खाली ऑथर्स का ही नाम रहता है, 2 पेजेस, मोर देन 800 ऑथर्स इन अ पर्टिकुलर वर्क, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ठीक है, एक्नॉलेज करना है करो, लेकिन ऑथर्स 2 पेज, मोर देन 800, मोर देन वन अराउंड 1000 ऑथर्स फॉर अ सिंगल पेपर, इज इट नॉट अनएथिकल? ये लेकिन होता है, मैं आपको बता दूं। और सीक्वेंस जो देने में किसका कौन सा सीक्वेंस में रहेगा, ये तो बहुत सारे इंडियन सुपरवाइजर से गड़बड़ करते रहते, ये होता है, दैट इज ऑल्सो अनएथिकल। देन सेकंड थिंग, हम लोग और कभी अनएथिकल करते हैं जो कि होना नहीं चाहिए, फंडिंग एजेंसी। फंडिंग एजेंसी हम लोग लिख देते हैं कि दिस वर्क वाज फंडेड बाय काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, झूठ मूठ में भी कभी लिख दिया जाता है। हाँ कि करना तो चाहिए एक्नॉलेजमेंट, लेकिन झूठ मूठ में पर्टिकुलर आप देखेंगे, जब कोई फंडिंग प्रोजेक्ट का नंबर नहीं रहता है और ईयर नहीं मेंशन रहता है, ज्यादातर ये गलत है। सो ये भी हम लोग एथिकली, ऑनेस्टली, जो एक्चुअल फंडिंग एजेंसी है तो लिखना चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं लिखना चाहिए। और फंडिंग एजेंसी का अगर लिख रहे हैं तो फंडिंग एजेंसी का जो फंड नंबर और प्रोजेक्ट नंबर जरूर मेंशन करना चाहिए, उसका रेफरेंस देना चाहिए। So when you publish a paper, you must mention the name of funding agency if it is there. Otherwise, don't say कि it was funded by this funding agency or no, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ज्यादातर के पेपर मांगते हैं, पब्लिशर मांगते हैं कि आपका फंडिंग वर्क का फंडिंग एजेंसी कौन था, तो कभी कभी झूठ मूठ में लोग लिख देते हैं, which is not necessary, no need to write।
that this was funded by CSR or DST or DBT or any funding, MPCST or whatever. No, not necessary. Then और एक होता है जैसे पर्टिकुलर क्लिनिकल ट्रायल्स जो होता है ह्यूमन बीइंग, जो क्लिनिकल ट्रायल होता है उसमें तो आपको रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ता है. योर वर्क प्रोटोकॉल जो है ना, यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड इन ICMR. और ये क्लिनिकल ट्रायल आप करने जाते हैं तो यू हैव टू मेंशन दैट रजिस्ट्रेशन नंबर आल्सो, और ये सही होना जरूरी है. एनी वर्क related to human being, right, particularly interventional work, even sometimes epidemiological work that needs registration, इतना जरूरत है. अनदर ये जब हम लोग करते हैं मेटेरियल्स मेथड लिखते हैं, मेटेरियल्स में हम लोग केमिकल्स के नाम देते हैं, राइट. ज्यादातर केमिकल्स कहाँ से लिया गया था, they were purchased from suppose Emerson or purchased from Germany, purchased from Loba or whatever, those should be written exactly from where it was purchased. हाँ कि इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, लेकिन गलत नहीं लिखना चाहिए कि ये इमाक से लिया गया था या और कहीं से लिया गया था, हाई मीडिया से, ये कुछ जो जहाँ से लिया गया था एग्जैक्टली वही लिखना चाहिए. कभी कभी वो गलत लिख दिया जाता है, इट इज ऑल्सो अनएथिकल. देन इफ यू थिंक ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो है ये आपका डिपेंड करता है कि आपका सुपरवाइजर और मेंटर कैसे डिजाइन कर रहा है, राइट, या आप मिल के कैसे डिजाइन कर रहे हैं. ये कभी कभी काफी अनएथिकल हो जाता है जब entirely it is the mentor who designs without consulting or consulting the co-authors. Co-authors को consult नहीं करता. So ये जो डिजाइन करते हैं ना, आप प्रोटोकॉल जो बनाते हैं पहले एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले, this design should be really approved or actually approved by all the authors or all the co-workers. भले वो स्टूडेंट हो, एक डिस्कशन करके उसका सही है कि नहीं है वो करना चाहिए, लेकिन बहुत बार देखा जाता है कि नहीं करते. हाँ कि इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल कि यू डू नॉट डिस्कस विद अदर्स ऑल द को-ऑथर्स, कभी कभी ये एक्सपेरिमेंट फेल्योर भी हो जाता है. It's not necessary that supervisor knows everything or the mentor knows everything. Even if he knows or she knows, it is always better to have a discussion, free and frank discussion with all the co-workers. तब जाके वो एथिकली तो होता ही है ना, अदरवाइज ऑल्सो दैट बिकम्स अ परफेक्ट, बिकॉज यू कैन गेट फीडबैक फ्रॉम एनीबडी कि नहीं सर इसको ऐसे करने से ऐसे रहेगा, इसको इस तरह करेंगे, उसको 3 ग्रुप नहीं 5 ग्रुप लेंगे तो बेटर होगा. देन यू फाइनली सब कुछ पॉइंट्स कंसिडर करके फाइनली डिसाइड कि यस दिस शुड बी द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन. और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में भी कभी कभी हम लोग गड़बड़ कर देते हैं, लोग करते हैं, जो कि कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करके भी लोग कहते हैं कि हम लोग किए. जैसे कुछ प्रीलिमिनरी एक्सपेरिमेंट्स होता है जो कि कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन लिख देते हैं कि प्रीलिमिनरी एक्सपेरिमेंट किया गया था और इसमें यह मिला था. प्लीज रिमेम्बर, आप एक बार लिख रहे हैं कि प्रीलिमिनरी एक्सपेरिमेंट किया गया था या पायलट एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन लिए हैं, आपके पास कम से कम 3 साल के लिए डाटा रहना चाहिए. पूछते नहीं है, लेकिन पब्लिशर कैन आस्क फॉर द रॉ डाटा इवन विद इन 3 years, कि आपका कोई अगर कंप्लेन आ गया, कुछ हो गया, तो आपका रॉ डाटा बुला जाएगा. इस तरह का नहीं करिए कि बिना करे एक्सपेरिमेंट कह दिए कि हाँ ये तो मैं इस पेपर में डाल नहीं रहा हूँ, अनपब्लिश डाटा लिख देता हूँ या रिजल्ट नोट ऑन कर देता हूँ, और ये हम पेपर मेन वर्क जो है उसी का केवल भेज रहा हूँ, और उसको खाली लिख देता हूँ कि प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशन जो हुआ था उसमें से ये मिला था. नो, डोंट डू दैट. सो एक्सपेरिमेंटल प्लानिंग एंड डिजाइनिंग आपको जरूर कंसल्ट करके को-ऑथर्स के साथ फाइनलाइज करना चाहिए. इफ नेसेसरी एक्सपर्ट के साथ भी करिए, वो तो अलग बात है. अदरवाइज कम से कम जो वर्कर्स होंगे उनके होना चाहिए. एंड co-workers should be aware of the experimental design so that in future they can say कि what exact experiment was done. लेकिन ये देखा जाता है कि कभी कभी co-workers, I know there were some people, persons, unnecessarily they give the name of vice chancellor or some other professors or their supervisor who doesn't know कि क्या हुआ था. नहीं, मुझे तो पता नहीं कब हुआ था क्या नहीं, लेकिन मेरा नाम डाला गया. कभी कभी उन लोग भी कहते हाँ मेरे नाम डाल भी दो कहते हैं,
ये भी होता है, which is wrong, absolutely wrong. So प्लानिंग, डिजाइन, ये सब सबको मालूम होना चाहिए. जब क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, एक ये लिया जाता है, कंसेंट होना चाहिए इंडिविजुअल वॉलंटियर का. जैसे अभी कोरोना वायरस का कोविड वैक्सीन जो हुआ है, बना है, क्लिनिकल ट्रायल किया गया, आइडियली सबकी कंसेंट जरूर लेना चाहिए. हो सकता है लिए भी है, लिए होंगे, तो ये कंसेंट लेना जरूरी है. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कंसेंट बिना लेके भी क्लिनिकल ट्रायल हो जाता है, और कहते हैं कि हाँ क्लिनिकल ट्रायल है, हम लोग इतना मोर देन 200 500 पेशेंट्स को कंसिडर किए होंगे. नो, प्रॉपर कंसेंट लेटर आपके पास होना चाहिए, एंड जो उनको अप्रूव करता है काम के लिए, वो कंसेंट लेटर को देखना चाहिए कि जरूरी है. इवन इन एनिमल सिस्टम, हम लोग जो एनिमल में काम करते हैं, एक कमिटी होता है, इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिकल कमिटी. ये इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिकल कमिटी जो सेम इंस्टीट्यूट का, जिसमें कि सोशल वर्कर रहते हैं या सोशल साइंटिस्ट रहते हैं, साइंटिस्ट रहते हैं, पेरेंट यूनिवर्सिटी का रहते हैं, फिर चेयरमैन रहता है, वेटनरी डॉक्टर रहते हैं, उन लोग एक्चुअली आपकी वर्क प्रपोजल को अप्रूव करते हैं, राइट. दे जनरली सेफगार्ड द डिजाइन ऑफ द वर्क, safety of the animals, well-being of the animals, और dignity of the animals, you can say. ये सब जो सब्जेक्ट एनिमल्स की, उनका ये सब मेंटेन करते हैं, देखते हैं, तब जाके अप्रूवल करते हैं. We generally see, I am also a member of that IAC of our university, and we generally see how many animals the PI is going to use, how many groups he will make, is he making unnecessarily many groups, is he using unnecessarily many animals, whether he is handling the animals properly or not, whether they will be taken care properly or not. So from ethical point of view, we generally see everything, right? So those should be seen by your ethical committee, and we have to mention in the paper that yes, it was approved. Our work proposal was approved by the institutional animal ethical committee. Sometimes even it needs the approval of the departmental ethical committee. Departmental ethical committee भी approve करता है. So ये really बताना जरूरी है. जैसे पेपर में हम लोग कोई उसका दिखाते नहीं सर्टिफिकेट, थीसिस में भले सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ता है, पेपर में जनरली करते नहीं, लिख देते हैं कि ये एनिमल एथिकल कमिटी अप्रूव किया है, एंड यू हैव टू गिव द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ दैट IAEC, which is generally given by Ministry of Environment and Forest and Wildlife. So ये जो IAEC का रजिस्ट्रेशन रहता है इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिकल कमिटी का, वो नंबर लिखना चाहिए, किस तारीख, कितना नंबर, क्या है, हम लोग को मेंशन करना पड़ता है. बहुत सारे पेपर है में बाहर का आता है जो हाँ एनिमल एथिकल कमिटी का नहीं लिखे रहते हैं, रेड्स, माइस या रेबिट्स, किसी में. आई यूज्ड टू रिजेक्ट आउटराइट, उनको तो नहीं, जब तक नहीं देंगे वी कैन नॉट बिलीव, एंड जस्ट सिंपली इफ दे से कि we had followed the ethical committee recommendations. So you should mention the registration number of that ethical committee. That is must. Then आप जब अप्रूव हो गया, आप रिसर्च करेंगे, आपका स्टूडेंट्स काम करेंगे. जब रिसर्च करेंगे तो ऑब्वियसली जो इन्वेस्टिगेशन होगा, there should not be any misconduct. So it should be properly investigated without any misconduct. Now when I say without any misconduct, follow in every aspect. जितना ग्रुप तो लिख ही रहे, साइज, ईच ग्रुप में कितना एनिमल एक्चुअली रखे थे. हो सकता है एक्सपेरिमेंट के टाइम में कुछ एनिमल मर गए, प्लांट वाले के लिए भी इस तरह प्लांट डिस्ट्रॉय हो गए, ये हुए, लास्ट में जितना बचे उतना को आप एन मान के लिखिए. सो यू हैव टू क्लियरली मेंशन द सिंपल साइज, एंड यू शुड नॉट फॉल्सिफाई इट कि नहीं एक्चुअली आपका 5 तक 7 लिख देंगे, 10 लिख देंगे. नो, आई नो इन सम केसेस in 1 or 2 colleges, the work which was done taking 4 different samples of individual animal, एक ही एनिमल का 4 डिफरेंट सैंपल, 5 डिफरेंट सैंपल ले लेते थे, ब्लड सैंपल या कुछ टिश्यू सैंपल, और उसी को जो माना जाएगा तो 5 डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट ऐसे ही होता है, 5 सेम एनिमल को हुआ और उसी को 5 एनिमल का मान लेते थे, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. आपको अलग अलग 5 एनिमल का लेना चाहिए, लेकिन दोज पीपल दे गेट प्रॉब्लम इन अरेंजिंग इवन द एनिमल, सो दे थिंक इससे ही लिख देते हैं. दूसरा,
ये तो एनिमल का साइज कितना है। आपका जो लेबोरेटरी की एथिक्स होता है, किस तरह का आप हैंडल किए एनिमल्स को, कहाँ रखे, कैसे लिए, एनेस्थेसिया दिए थे कि नहीं दिए थे, एनिमल्स को किस हिसाब से, कौन सा कितनी बड़ी केज में रखे थे, कौन सा खाना दिए थे, एनिमल रूम में पूरा फैसिलिटीज था कि नहीं था, ये सब आपको फॉलो करना पड़ेगा। हैंडल ठीक से किए थे कि नहीं, जो लेबोरेटरी एथिक्स होता है उसको फॉलो कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। तो ये जितने भी है आपका, ये एक्चुअली मेन हम लोग जो एथिकल्स रहता है ना, ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और एक्सपेरिमेंटेशन में ही मेन एथिक्स को फॉलो किया जाता है। बाकी तो करना चाहिए, लेकिन यहाँ भी बहुत जरूरी है। अब बात आया, फाइनली यू नीड डाटा, यू नीड ऑब्जर्वेशंस, यू नीड रिकॉर्डिंग्स, बॉडी लेना है या डाटा जो भी रिकॉर्ड करेंगे। सो फाइनली ये जो डाटा कलेक्शन होता है, ऑब्जर्वेशंस होता है या रिकॉर्डिंग होता है, दिस नीड्स फुल ऑनेस्टी। यह नहीं कि आपका एक ग्रुप में ज्यादातर का सैंपल डिस्ट्रॉय हो गया, आपके पास फाइनल रीडिंग के लिए केवल एक या दो बचे, एक दो में क्या स्टैटिस्टिक्स लगाएंगे। लेकिन कुछ कुछ हो सकता है, इट इज पॉसिबल दैट दे मैनिपुलेट द अदर रीडिंग्स, वहां दूसरा मैनिपुलेट करके रख देते, विच इज रॉन्ग। अल्टीमेटली एम क्या है कि आप जो एक्सपेरिमेंट किए हैं और जो रिजल्ट कंक्लूड कर रहे हैं और बता रहे हैं, इफ एनीबॉडी रिपीट्स दिस एक्सपेरिमेंट, he or she should get the same result। लेकिन आपका अगर रिजल्ट ही गड़बड़ है और आप उसको सही करके छाप दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली इवन इफ दिस वर्क इज रिपीटेड बाय समबडी एल्स, one will not get the actual result or actual conclusion, will not come to the actual conclusion। so आपका जो डाटा है वो ऑथेंटिक होना चाहिए, ट्रू डाटा होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन शुड बी ट्रू, और इवन द रिकॉर्डिंग बॉडी का, बॉडी आपको 0.05 दिख रहा है, आप लिख रहे हैं कि 0.09। और ये जो ऑडी लिया जाता है ना, एक्चुअली ऑडी बहुत बहुत बच्चे में देखता हूँ एमएससी में पेंसिल में लिखते हैं, टेबल में पेंसिल में ऑडी का, नथिंग शुड बी रिटन इन पेंसिल। आपको लेना है ऑडी, आइदर प्रिंट आउट लीजिए, अगर प्रिंट आउट नहीं है तो आप पेन पे ही लिखिए, और ये जो पेन पे ही लिख रहे हैं वो सही होना चाहिए, ना काट फीट कुछ नहीं होना चाहिए। काट फीट अगर किए हो, मैं तो सोचता हूँ कि मैं जब स्टूडेंट्स का कभी कभी देखता हूँ और काट फीट होता है, तो मैं कहता हूँ नहीं, फिर से इसको कर। मुझे डाउट होता है कि ये हो सकता है वो खुद काट के मैनिपुलेट कर दिया, कुछ लिख दिया, क्योंकि आउट ऑफ 7 रीडिंग्स एक दो का ऑडी थोड़ा उटपटांग आ जाता है, एक्सट्रीम ऑडी आया था। सो बेटर यू एक्सक्लूड दोज, व्हाई टू मैनिपुलेट। सो कभी कभी ये पॉसिबिलिटी है, माना जाता है कि उसको उसी को काट के उन लोग एवरेज ऑडी का बराबर लिख देते, व्हिच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, नहीं करना चाहिए, गलत। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और ये बहुत ही बड़ी पॉइंट है, डाटा मैनिपुलेशन शुड नॉट बी डन एट ऑल, नेवर 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 नेवर। उसी पर आपका फ्यूचर, साइंटिफिक फ्यूचर डिपेंड करता है, कभी भी नहीं होना चाहिए, राइट। अब नेक्स्ट बात आता है कि ये तो आपका डाटा मैनिपुलेशन, कभी कभी डाटा स्क्रीनिंग में, जो स्क्रीनिंग किया जाता है डाटा ना, स्क्रीनिंग कैसे करते हैं हम लोग, अपने हिसाब से करते हैं, थिंकिंग द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। कोई जरूरी है कि आप जो काम किए उसमें आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वही रिजल्ट आना चाहिए। सपोज यू हैव 7 डाटा और 7 ऑब्जर्वेशंस, आउट ऑफ 7 50% और मोर देन 4 ऑब्जर्वेशंस आर बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, आप एक्सपेक्ट नहीं किए थे। फॉर एग्जाम्पल कैडमियम क्लोराइड देने से एलपीओ बढ़ जाता है, लिपिड पेरोक्सीडेशन बढ़ जाएगा या एडवर्स इफेक्ट बढ़ जाएगा, आप ये एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन आपको कैडमियम क्लोराइड देने से कुछ कुछ में बढ़ गया, कुछ कुछ में घट गया, आप क्या करेंगे फिर 50-50% में, फिर आप सोचना शुरू करते हैं, अरे इसमें तो एडवर्स इफेक्ट आना चाहिए, मैं एडवर्स इफेक्ट ही बता देता हूँ, कोई चीज रॉन्ग नहीं आया, वो भी एक हो सकता अच्छा फाइंडिंग है, नहीं भी अगर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट पे है वो भी एक अच्छा फाइंडिंग है, आप उसको मार्क करना चाहिए। इफ नेसेसरी रिपीट द एक्सपेरिमेंट अगेन एंड कंफर्म इट, एंड इफ यू डू दैट मे बी यू विल फाइंड ए एक्सट्रीमली न्यू रिजल्ट, हो सकता है अच्छा रिजल्ट मिले। सो व्हेन यू स्क्रीन द डाटा यू हैव टू वेरी केयरफुल, which ones to be excluded, which ones are to be included, किसको एक्सक्लूड करना है, किसको इंक्लूड करना है। हाँ, एक एक ऑब्जर्वेशन है बहुत ही बिजारे है, बहुत ही एबनॉर्मल है, सपोज आपका वैल्यू, ज्यादातर के वैल्यू 2 3 4 5 6 तक आता है और एक आ गया 25,
obviously 25 is an extreme data, you exclude that. In that case your real n will be little less, एक कम हो जाएगा, fine, no problem, कोई बात नहीं. But don't manipulate 25 to again 6 or 7 कि मेरा तो 7 दिखाना है और मैं उसको भी 7 कर देता हूँ. No, don't do that thing. You can exclude that one, extreme data, but don't, while screening the data, don't manipulate that data. That is the thing. Okay, तो सुनाई दे रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना सुनाई और ये में? हेलो? No, sir. Okay, Yes, that's sir, fine. you are properly audible, sir. Yeah. अगर गैप चाहे तो बोलिएगा, अदरवाइज लेट मी कंप्लीट. ओके, चलते रहते हैं. अगर लगेगा कि यहाँ चाहिए थोड़ा सा बंद करना है तो बता दीजिएगा. सो ये जो है कि आप डाटा कलेक्शन और डाटा स्क्रीनिंग, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. चाहे आप डिजर्टेशन बनाए चाहे कुछ भी करें. मैं तो कहता हूँ डिजर्टेशन, जो एमएससी का मैं डिजर्टेशन देखने जाता हूँ कभी कभी एग्जाम में, कुछ भी लिख लग कर डाल देते हैं, कोई भी डाटा कुछ भी है. नहीं, छोटा सा काम कीजिए, कम डाटा हो लेकिन सही हो, उसी से क्लू मिल सकता है आपको फ्यूचर रिसर्च के लिए. मैं आपको बता दूं, तो उसको मैनिपुलेट मत कीजिए, क्योंकि कुछ कभी कभी होता है ना, कुछ उत्पटांग चीज, ऑर्डिनरी वर्ड में उत्पटांग पता नहीं क्या, कुछ उत्पटांग चीज आपका दिमाग में अगर घुस जाता है, हो सकता है वो एक नया फाइंडिंग टाइप का हो जाएगा, और उसको आप रिपीट करके जब करेंगे ना, हो सकता है कि नया मिल जाएगा, हो सकता है कोई बहुत ही बढ़िया चीज मिल जाए. सो कंसिडर ऑल एक्चुअल डाटा, ऑल ऑब्जर्वेशंस seriously, and if possible, if sufficient observations are not there, it is better to repeat the experiment, do it. And हम लोग का जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स है, बायोमेडिकल साइंस, बायोलॉजिकल सिस्टम्स में ज्यादातर के ये दोबारा जब तक नहीं करके कंफर्मेटरी नहीं होता ना, करना भी नहीं चाहिए. एक बार के ऑब्जर्वेशन पे फाइनल पब्लिकेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा 7 एनिमल्स रखते हैं, कभी कभी 5 मर के 5 में आ जाते हैं. सो इट्स बेटर टू रिपीट द एक्सपेरिमेंट बिफोर यू फाइनली कंसिडर कि यही है रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट. ठीक, अब ये तो हो गया. अब डाटा होने के बाद आप जनरली क्या करते हैं, इसको स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं. स्टैटिस्टिक्स में आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जो मीन वैल्यूज रहेगा उसी से ही आएगा. मीन वैल्यू तक आप हो सकता है मैनिपुलेट कोई कर दे, लेकिन जब स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं, सपोज टी टेस्ट लगाते हैं, आर लगाते हैं, एफ लगाते हैं, ये तो आपको वैल्यू से ही रिव्यूअर कैन कैच कि आप गलत लिखे हैं और या सही लिखे. कभी कभी इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि आपका स्टैंडर्ड एरर देख के हम बता सकते हैं कि ये दोनों ग्रुप में जो टी टेस्ट किए हैं और पी वैल्यू जो बता रहे हैं 0.05 या 0.001 और वटएवर में भी, ये गलत है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है. एन एक्सपर्ट कैन इजीली से दैट. सो वो वाला काम आप नहीं कर सकते. और बेस्ट थिंग ये होता है जब वो देते हैं ना, आप ग्राफ में ही दीजिए, टेबल देंगे तो वो कैलकुलेट भी कर लेगा रिव्यू, फिर कैलकुलेट करके बता देगा कि आपका ये टी टेस्ट का जो वैल्यू है, पी वैल्यू गलत है कि सही है. तो उसमें तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए, नहीं तो आपका पेपर ही रिजेक्ट हो जाएगा. अब बात आता है, ये करने के बाद सब कुछ रिजल्ट्स आपका जो है, ऑल द रिजल्ट्स आर परफेक्ट और नॉट, आप देख लीजिए. ठीक है, अब अगर है ठीक ठाक तो फिर आप उसमें स्टैटिस्टिक लगा के कुछ एक पर्टिकुलर कंक्लूजन में आएंगे, रीजनेबल कंक्लूजन में आएंगे, जो कि लगे कि हाँ आप सही कंक्लूड कर रहे हैं. कभी कभी तो मैं ये कहता हूँ कि कंक्लूजन अगर ये भी होता है कि 2+2=5, हो सकता सही है, कोई जरूरी नहीं है कि गलत है. लेकिन बायोलॉजिकल सिस्टम्स में या बाकी फाइंडिंग्स में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ये रीजनेबली सही है कि नहीं है, तो फिर आप उसको फाइनली लिखना शुरू कीजिए. सो रिजल्ट अच्छा आया, कंक्लूजन अच्छा हुआ, एक नया फाइंडिंग हुआ, फिर यू स्टार्ट राइटिंग द पेपर. अब जब आप पेपर लिखते हैं, राइट, जो कि कल मैं बताऊंगा थोड़ा डिटेल्स में, पेपर जब लिखते हैं तो ऑब्वियसली स्टार्ट्स विद द टाइटल. टाइटल आप अच्छा खासा दे दिए, जो कि आपका काम के बारे में जरूर रिफ्लेक्ट करता होगा, उसी तरह का टाइटल. फिर आप ऑथर्स के नाम, एफिलिएशन, ये सब देने के बाद, इवन कभी कभी एफिलिएशन में भी लोग गड़बड़ करते हैं, जो लिखते हैं टाइटल के बाद ऑथर्स की नेम, वो तो सीक्वेंस में तो अनएथिकल कभी कभी व्यू दिखा जाता है ये, लेकिन ऑथर्स की जो एड्रेस लिखते हैं ना, एफिलिएशन, उसमें भी कभी कभी लोग मैनिपुलेट करते हैं. क्या मैनिपुलेट, कभी कभी, रेयरली क्या मैनिपुलेट करते हैं. सपोज एक ऑथर, जब इसको कम्युनिकेट किया जाता था पेपर को, तब वो था
या जब लिखाई शुरू हुआ वो बाहर में विदेश में था, ये एक बड़ा लेबोरेटरी में था, तो उनका वही एड्रेस था एंड वही एड्रेस दिया जाता था। वो एड्रेस इसलिए दिया जाता था कि कभी कभी कहाँ की है ऑथर वो भी काउंट करता है आपका पेपर को कंसिडर करने के लिए फॉर पब्लिकेशंस और फॉर रिव्यू। लेकिन इन द मीन टाइम व्हेन फाइनली यू गॉट द पेपर रेडी फॉर सबमिशन, दैट गाय हैज शिफ्टेड टू समवेयर एल्स। से विदेश से इंडिया आ गया, मैं एक को जानता हूँ इसलिए मैं बता, विदेश से इंडिया आ गया। अब इंडिया आने का बाद उस पेपर को भेजा जा रहा है, लेकिन उनका वही पुराना जो एफिलिएशन है ना यूएसए का या यूरोप का जो भी हो वहां का दिया जा रहा है, क्योंकि उनकी जो बॉस है कभी कभी एडिटोरियल बोर्ड में रहता है, तो उनका एड्रेस चले जाता है और ये सोच के दिया जाता है, और कभी कभी हो सकता काम भी करता है कि उनका एड्रेस अगर बाहर का रहेगा दैट विल हेल्प इन गेटिंग द पेपर एक्सेप्टेड, और हो सकता है भी करता है, बट इट्स रॉन्ग, आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सो यू आर फॉल्सिफाइंग द डाटा, राइट, फॉल्सिफाइंग द एड्रेस, सो दैट शुड नॉट बी देयर। ज्यादा से ज्यादा आप करेंट एड्रेस करके उसको लिखना जरूरी है, एक स्टार देके या कुछ देके, लेकिन वो कुछ लोग कर देते हैं, सोचते नहीं। चलिए वो बात हो गया, उसके बाद आप एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, फिर मेटेरियल्स मेथड रिजल्ट्स डिस्कशन ये लिखेंगे। अभी जब टेक्स्ट में मेटेरियल्स मेथड रिजल्ट डिस्कशन लिखते हैं, यू जनरली साइट सम पेपर्स, डिफरेंट मेथड से, नंबरिंग मेथड है, देन सरनेम फॉलोड बाय ईयर, व्हाटएवर मे बी without citation of previously published papers, the introduction and discussions, these are not complete, कम से कम। सो ये जो मैं बात कर रहा था कि जब आप लिखेंगे पेपर, व्हेन यू राइट द पेपर देन ऑब्वियसली यू गिव सम साइटेशंस, और ये जो साइटेशंस आप देते हैं ये साइटेशंस एक्चुअल होना चाहिए, अदरवाइज थोड़ा सा जो क्लेवर रिव्यूअर्स होते हैं ना उन लोग क्रॉस मैचिंग करते हैं, सो समटाइम्स दे इग्नोर, क्योंकि ठीक है ठीक सोच दे एक्सेप्ट इट कि हाँ ठीक जो साइटेशन लिखा होगा, नंबर जो दिया होगा या सरनेम फॉलोड बाय ईयर लिखा होगा साइटेशंस में, दैट मैचेस विद द एक्चुअल साइटेशन और एक्चुअल रेफरेंस। लेकिन कभी कभी ये नहीं होता, गलत साइटेशन लोग दे के कर देते। फॉर एग्जाम्पल जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग साइटेशन रहता है कभी कभी, सपोज यू आर गिविंग अ साइटेशन and you have worked on diabetes and you giving a citation of diabetes, so diabetes में sugar estimate किया जाता है, but you are giving a citation for a paper in which the paper the paper was mainly concerned on some other aspects, say for example thyroid aspects or hypertension or cardiovascular problem, but a parameter that is sugar estimation was considered. So people used to give that type of citation also, which is not perfect. So ethically आप वो गलत citation दे रहे हैं, so वो नहीं होना चाहिए, जो एक्चुअल citation है वही देना चाहिए। ओके, सो citation भी आपको थोड़ा सा केयरफुली रहना पड़ेगा। देन ऑथरशिप्स ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आप जब लिखेंगे ऑथरशिप्स किस सीक्वेंस में देना है, कितने ऑथर्स को देना है, अननेसेसरी हम लोग जैसे गिफ्ट नहीं करना चाहिए ऑथरशिप, सो देयर शुड बी नो गिफ्ट ऑथरशिप और नो घोस्ट ऑथरशिप। व्हाट इज घोस्ट ऑथरशिप? घोस्ट ऑथरशिप क्या है कि आप एक्चुअली काम जो है किए हैं लेकिन आपका नाम उसमें है, राइट, ये घोस्ट ऑथरशिप है। और बिल्कुल भी काम नहीं किए हैं, बिल्कुल भी नहीं, आप दे रहे हैं, दैट इज गिफ्ट ऑथरशिप। सो बिना काम करके भी आप पा रहे हैं, या ऑब्लिगेटरी ऑथरशिप ले रहे हैं, अननेसेसरी ऑथरशिप ले रहे हैं, या फिर जो काम किया उसका नाम जानबूझकर आप हटा देते, हाँ कि एक्चुअली उसको ऑथरशिप नहीं करना चाहिए। सो ये एक प्रॉब्लम होता है, बट मेजर प्रॉब्लम कभी कभी होता है इम्प्रॉपर सीक्वेंस में, सीक्वेंस आप ठीक से नहीं दी, जिसका जो रिलेटिव कंट्रीब्यूशन है उसी हिसाब से देना चाहिए। इट इज बेस्ड ऑन द वर्क कंट्रीब्यूशन, वर्क कंट्रीब्यूशन में एक्सपेरिमेंटल वर्क भी आएगा प्लस आपका राइटिंग वर्क या प्लानिंग या एनी अदर वर्क, ग्राफ्स बनाना या टेबल बनाना, सब कुछ आएगा। देन और एक चीज देखना, आपका जो ये पब्लिकेशन है डुअल पब्लिकेशन नहीं हो, जो पहले शुरू में मैं बताया था, देयर शुड बी नो डुअल पब्लिकेशन। दैट मीन्स आप एक ही काम को दूसरी जगह में भी पब्लिश करने नहीं भेज रहे, राइट, सेम वर्क।
दूसरे में भेज दिया। एक तो दोबारा दोनों तरफ एक ही साथ पैरेलली आप भेज रहे हैं 2-3 जर्नल, वो एक अलग है, सिमिल्टेनियसली व्हिच इज आल्सो रॉन्ग। सेकंड, सेम डाटा को आप दो में पब्लिश नहीं कर सकते, ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, उसको आप बस सेंटेंस थोड़ा सा चेंज चांज करके सेम डाटा को फिर पब्लिश। कभी कभी केसेस में ये देखा भी गया कि ये हुआ, सो दैट इज आल्सो एब्सोल्युटली रॉन्ग, वो नहीं होना चाहिए। सो ये जो भी हो, पेपर जब लिखेंगे ये साइटेशन का ध्यान रखना है, ये रखना है, फिर गिफ्ट ऑथरशिप का नहीं देना है, डुअल पब्लिकेशंस तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। फिर कुछ होता है और पॉइंट को हम लोग कंसिडर करते हैं, जो कि ये ये है, जो कि अगर आप करते हैं इस तरह का प्रॉब्लम क्या होता है, राइट। ये प्रॉब्लम सब में आता है, मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है corresponding author, because corresponding author is one, of course he or she gets the credit, corresponding author को तो क्रेडिट मिलता ही है और मेन क्रेडिट जाता भी उन्हीं को, लेकिन डिस्क्रेडिट भी कभी कभी उसके पास जाता है, क्योंकि ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द करस्पॉन्डिंग ऑथर। उनको ज्यादा वेटेज मिलता है, लेकिन उसके साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी उनका रहता है। इफ सम रॉन्ग डाटा हैव बीन पब्लिश्ड और सम प्लेगिज्म इज देयर, अभी भी रह गया, या कुछ डाटा का कुछ कॉम्प्लिकेशन से, जो कुछ भी है, मेन प्रॉब्लम करस्पॉन्डिंग ऑथर के साथ रहेगा। सो ही और शी इज लायबल टू आंसर एवरीथिंग रिलेटेड टू द पेपर, एवरीथिंग। सो क्रेडिट भी है, डिस्क्रेडिट भी है, राइट। और अगर प्लेगरिज्म हुआ है, अनएथिकल फॉलो हुआ है, पहले इसको पकड़ेंगे, करस्पॉन्डिंग ऑथर को पकड़ेंगे। So he or she is responsible for all this unethical बिजनेस और अनएथिकल वर्क, वही होगा। सेकेंड, सुपरवाइजर का लॉस होता है, या मेंटर का लॉस होता है, या लीड ऑथर का, क्योंकि एक पेपर अनएथिकल वे में अगर पब्लिश हो गया तो प्रॉब्लम क्या होगा कि उस पेपर का क्रेडिट तो गया ही गया, लेकिन भले करस्पॉन्डिंग ऑथर सुपरवाइजर नहीं है, या मेंटर नहीं है, या लीड ऑथर जो उस ग्रुप का है वो नहीं है, लेकिन डिस्क्रेडिट उनको जाता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में लोग उस पर थोड़ा सा ये करते हैं, कहते हैं हाउ इट वाज पॉसिबल कि from this laboratory the paper had come, but how it was possible to use some unethical means in the publication of this paper, ये कैसे हो गया। So discredit goes to the mentor also. So mentor, even if he or she is not the corresponding author or not the first author, he should also be concerned about the unethical practices. Never, he should not. और लेकिन इंडियन में बहुत सारे होते हैं इंडियन जो बस ऑथरशिप के लिए कहते हैं हाँ नाम डाल दो कोई दिक्कत नहीं। मैं तो मेरा पीएचडी स्टूडेंट्स को भी मना करता हूँ, विदाउट आस्किंग मी, इवन इफ यू आर ए पीएचडी होल्डर, यू आर सेल्फ डिपेंडेंट नाउ, डोंट पुट माय नेम इन योर पेपर, straight away I said no, straight away. And you can't imagine, even I don't write one paper of my PhD students who was a lecturer, he is no more now, because he mentioned my name in that year, but that was a substandard paper, so I don't mention that paper even in my CV. He didn't tell me anything and published just by giving my name. So what they do, sometimes the postdoctoral fellows or say newly appointed lecturers, if they have done PhD under you, they're thinking my supervisor is a good worker or he is a professor. So if I put his name, my paper will be published, and in future he will be happy to think about my appointment, or he will help me in future in all my academic career. Thinking that they used to give authorship without asking the supervisor, which is absolutely wrong, absolutely wrong. Because if the paper is a substandard paper, and if uh, paper has some problems from ethical point of view, then blame also goes to the that lead author or the group leader or the mentor. So better not to have. And moreover, once you are established, if you are a professor, you are having good number of papers, why do you bother about one paper or two papers, that too in a substandard journal? It's not necessary. It can create problem even for the other authors, because their names are also there. So if the paper is a substandard paper or unethical paper, then obviously all the authors, they are blamed to some extent, because gradually people know that
this sort of paper which was done that was having lots of unethical aspects, and ultimately the university institute gets blamed and nation gets blamed, because if a situation comes that you have to retract the paper, you have to withdraw the paper, राइट, जैसे कि कभी कभी थेसिस अवार्ड हो जाता है, बाद में विड्रॉ करना पड़ता है। एक दो यूनिवर्सिटी में जानता हूँ इवन रजिस्टर लेवल का लोग का पीएचडी डिग्री विड्रॉ किया, लेकिन वो बदनाम तो उस यूनिवर्सिटी का भी हुआ ना जहाँ से वो सबमिट किया था थेसिस, जस्ट लाइक दैट। सो अल्टीमेटली द नेशन गेट्स ब्लेम्ड, द इंस्टीट्यूट गेट्स ब्लेम्ड। जैसे अभी हम लोग शुरू का स्लाइड में बताया कि यूएसए में भी इतना होता है, जर्मनी में भी इतना गड़बड़ होता है, भले साउथ कोरिया में कम होता है, लिस्ट होता है, तो उस तरह का तो बात नेशन के लिए भी आ जाता है। सो मिसकंडक्ट तो क्वेश्चन ही नहीं उठता है कि साइंटिफिक मिसकंडक्ट कभी भी करना चाहिए या अनएथिकल काम बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए, शुड टोटली अवॉइड। ओके, अब फाइनली बात क्या आता है कि कुछ जर्नल्स होता है अनएथिकल नहीं है, ठीक है, काम सब कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं, एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कर लिए हैं, सब कुछ ठीक है, ऑथरशिप भी दे दिया, सब कुछ ठीक है, लेकिन जल्दीबाजी में जस्ट टू गेट a easy publication and to get a publication as soon as possible and to mention in the CV, they used to publish in some ordinary journals which are known as predatory journals. Predatory journals जो है एक बड़ी लिस्ट है, एक दो नहीं है, इंडिया के खाली नहीं बाहर वाले का भी है। predatory journals में अगर आप पब्लिश करते हैं ना, जनरली यू डोंट गेट एनी क्रेडिट, यू डोंट गेट एनी क्रेडिट। नाउ व्हाट आर predatory journals? जनरली अगर आप मीनिंग देखेंगे, प्रेडेटरी का ऑर्डिनरी मीनिंग क्या है? ऑर्डिनरीली फॉर एनिमल, फॉर इफ यू कंसिडर एनिमल, प्रेडेटर इज वन व्हिच प्रेज ऑन अदर एनिमल, इट्स बेसिकली कार्निवोरस, प्रेज ऑन अदर एनिमल्स। सो इट प्रेज ऑन अदर एनिमल्स, व्हिच एनिमल? इट प्रेज ऑन अनदर एनिमल हु इज वीकर इन नेचर, और उतना वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए जो प्रेडेटर है उसको मार के खा जाता है, यही है ना, या उसको एक्सप्लॉइट करता है, ये कर सकते हैं। सो इट प्रेज ऑन अदर एनिमल। अब इसको आप कंसीडर करेंगे तो पब्लिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसी तरह का ही होता है। जहां बात होता है ह्यूमन की, प्रेडेटरी ह्यूमन, तो आप कहेंगे ह्यूमन कैन बी कंसिडर्ड प्रेडेटरी if it exploits or if he or she exploit other people, exploit करता है। अब यहाँ कौन किसको एक्सप्लॉइट करता है? the predatory man or the publishers exploit, right, of a journal other authors, बाकी ह्यूमन को एक्सप्लॉइट करता है दूसरी ऑथर्स को, क्योंकि उन लोग जल्दीबाजी में है, उनका वीकनेस क्या है कि हम लोग जल्दी पेपर पब्लिश करेंगे, एक्स वाई जेड कोई भी जर्नल में है, कुछ भी देके पेपर ऊपर पैसा देकर पब्लिश करेंगे। एंड ये कौन करता है? जो पब्लिशर इन द फॉर्म ऑफ प्रेडेटरी मैन एक्सप्लॉइट द ऑथर्स, राइट। So the predatory publishers or the journals, they generally exploit the authors who are weaker in nature from scientific point of view. उन लोग सोचते हैं कि मैं अगर बड़ी जर्नल दूंगा, पब्लिश करूंगा, करने का कोशिश करूंगा, इफ आई सबमिट इट टू ए peer reviewed journal or big journal, high quality journals, possibly my work will be rejected or it will not be accepted. So why to wait for that? Why to take a risk? Better I should publish it anywhere and I should get a credit. वो वही सोच के कर देते। For that matter, if he has to pay some amount, he is going to pay it. 2000, 5000, 10,000 लेके कर देते। So people do that thing just hurriedly to publish one paper in any journal. एंड ये सिचुएशन जब ज्यादा होता है, और आजकल पता चल गया कि यूजीसी एक प्रेशर डाल रहा है कि आपकी पब्लिकेशन होना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट इवन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी थेसिस आई हैव सीन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी, द पीएचडी स्टूडेंट्स आफ्टर वर्किंग फॉर 5 to 6 years, मैं आपको बता दूं एक थेसिस से, हाँ कि एक दो पेपर हुआ है, लेकिन ऑर्डिनरी जर्नल, कोई इम्परफेक्ट का कोई खास ये नहीं, पैसा देकर पब्लिश हो गया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी मैं बात कर, तो ये जल्दीबाजी नहीं करना कि एरू गरू कोई भी जो, क्योंकि उन लोग जान गए कि आजकल पब्लिकेशन चाहिए स्टूडेंट्स को बिफोर थेसिस सबमिशन, लेक्चरर रीडर को तो चाहिए प्रमोशन के लिए, या
प्रोफेसर को चाहिए और भी सीनियर प्रोफेसर बनने के लिए कि और कुछ डायरेक्टर बनने के लिए नंबर दिखाना है, तो इसलिए जल्दी पब्लिश कर दो, चाहे XYZ कहीं भी हो, तो डाल देते। पैसा देना पड़ेगा 2,000 3,000 दे दो। सो व्हाट दे डू वंस दे टेक मनी, they generally don't go through all ethical considerations, or they don't send the paper for peer review process. So there will be no peer reviewing of that particular journal, right? बस पैसा दिया, आपका पब्लिश हो गया। मैं तो कभी कभी देखता हूँ वेरी फर्स्ट सेंटेंस में ही गलती निकल आता है, टाइटल में गलती निकल आती है। सो ये जो प्रीडेटरी जर्नल से और प्रीडेटरी पब्लिशर से, उसको अवॉइड करना चाहिए। जनरली क्या होता है, आप देख called sometimes these predatory journals or predatory publishers are called deceptive publishers, right? Or scamming journals, ये कभी कभी कहा जाता है, who have poor academic standards, they do not have proper academic standards and the practices in the editorial and peer review process. Normally peer review ठीक ढंग से नहीं होता है, editorial practice नहीं follow किया जाता है, very poor standard होता है, लेकिन publish हो जाता है, right? And they apply poor ethical procedures also. They never go through even ethical standards by claiming to live up to the established quality control. क्लेम तो कर लेते, कभी कभी कुछ क्लेम करते थे कि हम लोग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल फॉलो करते हैं, पीयर रिव्यू फॉलो करते हैं। एक्चुअली प्रैक्टिकली दे डोंट डू सो। इफ एट ऑल दे डू, इट इज एट द सुपरफिशियल लेवल, वेरी सुपरफिशियल लेवल। सो ये जो करते हैं जो प्रीडेटरी जर्नल्स, नॉर्मली दे चार्ज इन द नेम ऑफ एक आर्टिकल पब्लिशिंग चार्जेस और प्रोसेसिंग फी के नाम पे, या पेज प्रोसेसिंग फी के नाम पे, या सबमिशन फी के नाम पे, दे आस्क सर्टेन फीस एंड वंस यू गिव, इट इज पब्लिश्ड। कोई स्टैंडर्ड जरूरत नहीं, कुछ भी एथिकल कोई जरूरत नहीं, राइट? एंड सोल पर्पज इज, आप जानते हैं, इट इज, क्योंकि उनका तो रेपुटेशन होता ही नहीं है, बट अल्टीमेटली वी वांट मनी। So we are ready to give money, they are ready to exploit us. So they used to exploit our sentiments, they used to exploit our eagerness to publish as early as possible in any journal, and so both think we are getting benefited, but in long run, none of them, neither publisher, that is publisher of the predatory journal, nor the authors, they get actual benefit, नहीं मिलता। लॉन्ग रन में तो नहीं मिलता, शॉर्ट रन में भले मिल जाता। सो अल्टीमेटली क्या होता है कि ये आपका लॉस होता है लॉन्ग रन एकेडमिक करियर का। एंड देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ दिस प्रेडेटरी जॉब, लॉन्ग लिस्ट। आपको मैं एक रेफरेंस दे दूं, जैसे कि इवन इंडियन का ही मैं कुछ ढूंढा था, इंडियन जर्नल ऑफ एडवांस नर्सिंग, इंडियन जर्नल ऑफ एडवांस केमिकल साइंस, अप्लाइड बेसिक मेडिकल साइंस, अप्लाइड रिसर्च, ड्रग्स, ऐसे बहुत सारे जर्नल है। ये तो केवल कुछ इंडियन नाम से ही, बाहर का भी है, मैं आपको बता दूं, लॉन्ग लिस्ट, बिग लिस्ट, जो कि प्रेडेटरी, आपको अगर गूगल में इसमें भी डाल देंगे प्रेडेटरी जर्नल का लिस्ट चाहेंगे और मिल जाएगा। मैं उसका जैसे देता, आप सिंपल डाल दीजिए predatorjournals.com, राइट? यू विल फाइंड द लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्रेडेटरी जर्नल्स। Better not to publish in those journals. First try, if you think your work is very good, first you try to publish in standard reputed journals, which is peer reviewed journals, and preferably international journal. Of course, in India, some journals, even in biological science, they are very good journals. In other science also, I'm sure there are good journals. You try to publish those who are having some impact factors and quality papers. They generally publish the quality papers. And if not possible, then you can think of something else. Otherwise, no. It is better to have no paper than to have an ordinary paper in a very poor journal. This is my, so ultimately my suggestion is that finally, if you are truly interested for research, ठीक है, पीजी लेवल में आपको डिजर्टेशन करना हो तो करना ही पड़ेगा, वो तो अलग बात है। फिर भी कोशिश कीजिए, आपको टाइम मिल रहा है 6 महीना 4 महीना 5 महीना जो भी हो, उतना टाइम प्रॉपरली दीजिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख लख कर डाल दीजिए, डिग्री मिल जाएगा। जनरली किसी को रिजेक्ट नहीं किया जाता, सबको पास कर दिया जाता है। ये सोच के अगर करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। अगर कर रहे हैं तो ठीक ढंग से करिए, सो दैट यू कैन लर्न समथिंग फ्रॉम प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। राइट इट एटलीस्ट प्रॉपरली, उसका रेफरेंसेस ठीक से लिखना है, ये करना है, ठीक से देना है,
उसमें कमजोरी मत कीजिए, एथिकली आप टाइम दीजिए, राइट। एंड इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, डोंट डू रिसर्च एट ऑल, मत करिए, कोई जरूरत नहीं है। बहुत लोग रिसर्च नहीं करके भी अच्छा खासा नाम कमा रहे हो, अच्छा खासा, बिकॉज दे नो देयर पोटेंशियल कि मैं इसमें काफी माहिर हूँ और इसमें मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई रिसर्च करने का जरूरत है। अगर पैसा कमाने का बात आया, आई एम श्योर मेनी पर्सन आर देयर, मेनी इंडिविजुअल्स आर देयर who are not professors, who are not scientists, who are not researchers, but they are earning much more than a researcher, much more, let me tell you. So अगर कर रहे हैं तो ठीक ढंग से करें, नहीं तो नहीं करें। जहां बात आया आर्टिकल पब्लिकेशन, रिसर्च पब्लिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, डू इट परफेक्टली, डू योर रिसर्च परफेक्टली यूजिंग all proper methods, methodology, relevant methodology, एथिकली जो होना चाहिए वो फॉलो कीजिए, ऑनेस्टली काम कीजिए, देयर शुड बी नो मैनिपुलेशन, नो फल्सिफिकेशन, यू कैन से, कुछ नहीं, सब कुछ परफेक्टली करिए, फिर ट्राई टू पब्लिश। मैं जानता हूँ कि उसमें थोड़ा कष्ट होता है, बट if you try, it is possible, it's not impossible. So try to publish in standard journal or quality journals and contribute in true science or true innovation in your respective field, चाहे कुछ भी फील्ड हो, चाहे कॉमर्स हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, म्यूजिक हो, कहीं भी आप अगर कर रहे हैं रिसर्च या कुछ डिजर्टेशन हुआ है, तो डू इट सिंसियरली विथ फुल एथिक्स एंड फुल मोरालिटी और विथ फुल ऑनेस्टी। Okay, with this, I think I should conclude my talk on this aspect, right? Particularly on the ethical aspects. So, how to do research uh, ethically, um, sound research, you can say. I think I have tried to give a brief account on this, and it is all up to you whether you are going to follow future in future, but better you should follow if you are going to stick to research, stick to publications. So thank you very much.